बट सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में से मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। इसकी जो वॉल्स बनाई गई हैं चारों तरफ से वो ब्लास्ट रेजिस्टेंट है। Central Vista project, it is the redevelopment of the 3.2 किलोमीटर एरिया, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जो दोनों साइड का पूरा एरिया है, the redevelopment is called the Central Vista Development Project. This also started in 2019 and it was planned for around 4 years under construction. And the need arose because the buildings of the old parliament, North Block, South Block, Krishi Bhavan, Nirman Bhavan, they are very old buildings. Some were constructed in 1911, 1922, 1923. So these are 100 years old buildings or more. Many of them are losing their life and some of them are becoming functionally outdated. देखिए दो तरह के फेलियर हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेंथ फेलियर हो सकता है कि बिल्डिंग इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ and it may have the dangerous situation if any earthquake comes or any such situation comes. Second is functional failure. Functional failure का मतलब ये होता है कि if the existing parliament was designed for the 545 MPs, right, and now the number of member of parliaments is increasing and those new MPs cannot sit, so it means it is insufficient, it is functionally failed. It is not able to fulfill the requirement according to the current situation. Moreover, the building was designed at that time. We don't have the modern Internet of Things or the latest technology integrated in the design. Now the India is heading towards the developed nation. We are a progressive country. We have to show that yes, we are progressing. So infrastructure includes this also as a part of infrastructure, because पूरे global world से सारे जितने भी ग्लोबल हेड्स हैं दे कम एंड दे स्टे इन राष्ट्रपति भवन या यहाँ कहीं मीटिंग होती है। फॉर दिस इज अवर मेन एरिया विच वी हैव टू शोकेस टू द वर्ल्ड और इंटायर कम्युनिटी। तो एक तो वो रीजन हो गया। दूसरा फंक्शनल आउटडेशन इज द इंपॉर्टेंट रीजन कि इट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू कैटर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। एंड द नेक्स्ट इलेक्शन आफ्टर दिस इलेक्शन तो 1300 लोगों के बैठने का हॉल भी चाहिए। सो दिस वॉज नॉट सफिशिएंट एग्जिस्टिंग वन, so it was decided to redevelop. So in redevelopment what has been decided कि 3 buildings will not be dismantled, North Block, South Block and Old Parliament, but remaining buildings like Krishi Bhavan, Nirman Bhavan, those will be dismantled and reconstructed. So the North Block and South Block will be used as a museum और उनको भी strengthen करना पड़ेगा because their life is heading toward the completion. So those will be retrofit. Retrofit word जानते हैं ना? If the old building has to be improved, strength improvement, then that process is called retrofitting. So retrofitting करना पड़ेगा, उसको improve करेंगे, उसकी life को बढ़ाएंगे, फिर उसको museum के लिए use कर लेंगे. And new buildings will be constructed in which the ministries will shift and new parliament is already functional. So this is the Central Vista project. But Central Vista project में से most of the buildings have been declared a secret project. अगर आप इंटरनेट में जाओगे इनकी बिल्डिंग्स की डिजाइन चेक करोगे कि कौन क्या डिजाइन है, इंटरनल लेआउट कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट डिक्लेयर्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज प्रोजेक्ट्स आर सीक्रेट। हाँ, राम टेम्पल के बारे में मिल जाएगा, बुर्ज खलीफा के बारे में मिल जाएगा, आप कोई भी दूसरी बिल्डिंग ढूंढोगे उसके सारे डिटेल आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, बट यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। खाली आपको फोटोग्राफ मिलेंगे और आपको ये मिलेगा कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब फिनिश होगा। उसके अलावा अंदर क्या है, वॉल कैसी बनी, मटेरियल क्या है, फाउंडेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसके अंदर कितने डोर हैं, कितने दरवाजे हैं, ये सब नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज दिस इज ए सीक्रेट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज आर समथिंग व्हिच इज अवेलेबल, राइट। सो देखिए ये है ओल्ड बिल्डिंग्स, दिस इज द ओल्ड पार्लियामेंट एंड दिस यू कैन सी द राष्ट्रपति भवन। 1911 में किंग जॉर्ज V, he was the person who decided to shift the capital of India from Kolkata to Delhi. तो 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया किंग जॉर्ज V में,
and the design of the Rashtrapati Bhavan, entire this central जो NDMC area, Rashtrapati Bhavan, North Block, South Block, Central Secretariat, India Gate, this entire area was designed by the yes, Edwin Lutyens. He is an architect along with Herbert Baker. ये दो chief architects हैं. They have designed it. So this was the historical perspective of this, and this is the design part. लगभग 20,000 crore का एक estimated cost है, and 3.2 kilometer stretch starting from the India Gate and till राष्ट्रपति भवन. यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है. ये पूरा स्ट्रेच लगभग 3.2 किलोमीटर का, जिसको आप राजपथ कहते थे. नाउ इट इज नोन एज कर्तव्य पथ, राइट. So the redevelopment started in 2019. It consists of triangular shape of the new parliament, right? New parliament we will talk about triangular shape. Old one was circular. And central secretariat, यहाँ पर सारी ministries आएंगी और मंत्रालय यहाँ पर function करेंगे. Then revamp of Rajpath, now it is called कर्तव्य पथ. It also includes reconstruction of निर्माण भवन, जहाँ पर CPWD का भी ऑफिस है और भी मंत्रालय हैं. कृषि भवन का भी रीडेवलपमेंट होगा, विज्ञान भवन का भी रीडेवलपमेंट होगा. नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम आफ्टर रेट्रोफिटिंग. इनको डिमोलिश नहीं करेंगे, इनको म्यूजियम के लिए यूज करेंगे. तो अभी भी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो अभी भी वहीं पर है. ये पूरा एरिया है, ये राष्ट्रपति भवन है और इधर आगे इंडिया गेट है. ये पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक का एरिया है. दिस कंप्लीट, ये कर्तव्य पथ बन गया यहाँ से. ये ओल्ड पार्लियामेंट है, दिस इज ट्रायंगुलर शेप्ड न्यू पार्लियामेंट. तो ये कुछ ऐसा है. और बाकी अभी जो और ब्लॉक बनना है, कुछ इधर है कुछ इधर है, एंड दीज आर द ब्लॉक्स अंडर कंस्ट्रक्शन. दिस इज द न्यू पार्लियामेंट. यहाँ पर अशोक स्तंभ है, एंड देन इस बिल्डिंग के अंदर ही आपने देखा होगा कि जहाँ पर स्पीकर बैठते हैं, स्पीकर की सीट के पीछे सिंगोल लगाया गया है, राइट. लोग ऐसा मानते हैं कि सिंगोल वाज ए साइन व्हेन द पावर चेंजेस थ्रोन पावर. जैसे कोई एक राजा दूसरे नए राजा को अपॉइंट करता है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए सिंगोल का यूज होता था पहले. न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इक्विप्ड विद द मॉडर्न फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी. इट्स फाउंडेशन इज राफ्ट फाउंडेशन. ये आरसीसी राफ्ट है, ये आरसीसी राफ्ट है. राफ्ट और स्टोन फाउंडेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. जो राम टेम्पल में यूज हुआ है वो भी राफ्ट की तरह है, लेकिन राफ्ट नहीं है, वो है रॉक फाउंडेशन, और ये है राफ्ट फाउंडेशन. राफ्ट में क्या करते हैं, एक्सकवेशन करने के बाद पूरे में कंक्रीट डालते हैं, लेकिन वो कंक्रीट उसमें स्टील भी होता है. जब स्टील होगा उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी वहां 50 फीट ली है. तो ये राफ्ट फाउंडेशन है. लेकिन इस स्टील की एक खास बात है, दैट स्टील विच इज यूज्ड इज CRS, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील. तो ये CRS जो इसमें यूज हुआ है, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील, उसकी लाइफ ज्यादा है. नॉर्मली वी आर यूजिंग Fe250, Fe500, आपने देखा होगा, देखा Fe500 मतलब नॉर्मल स्टील हैविंग द माइल्ड स्टील हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इसमें कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील यूज हुई है पार्लियामेंट में. दूसरा जी, इसमें जो कंक्रीट यूज हुआ है वो कंक्रीट भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई ग्रेड. हाई ग्रेड कंक्रीट इज M50 और M60. मतलब नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, M25, M30. तो उससे डबल स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट यूज हुआ है. जो उसमें M होता है वो होता है मिक्स डिजाइन. 30 मतलब 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ हो गई कंप्रेसिव. और अगर M60 है तो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ है. सो दिस इज हाई ग्रेड कंक्रीट. तो कंक्रीट विद कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील राफ्ट हैज बीन प्लेस्ड इन द बॉटम. ताजमहल का फाउंडेशन बता सकते हैं. ताजमहल में जो फाउंडेशन है, नीचे वेल है और वेल के ऊपर वुडन राफ्ट है. तो वेल के ऊपर वुडन राफ्ट है. उस समय कंक्रीट नहीं होता था, उस समय स्टील नहीं था. तो उस समय जो फाउंडेशन यूज होते थे वो तो स्टोन या फिर वुड, यही फाउंडेशन में यूज होता था. पुराने समय में कंक्रीट नहीं था या सीमेंट नहीं था, तो लाइम यूज होता था, लाइम मोर्टार. तो वहां पर ताजमहल में बड़े बड़े वेल खोदे गए, गड्ढे, और उन गड्ढों में क्या भर दिया गया, स्टोन भर के उनको कॉम्पैक्ट कर दिया गया.
और ऊपर ऐसे भर भर के लाए, अलग अलग जगह गड्ढे करके, उसके ऊपर फिर पूरे एक राफ्ट रख दी गई, किसकी? वुड की। और वुड कौन सी थी वो? उस वुड का नाम है इबोनी। ये इबोनी वुड अब तो ज्यादातर अफ्रीका में और उधर अमेजोन जंगल में पाया जाता है, पहले इंडिया में भी था, धीरे धीरे लोगों ने इसको खत्म कर दिया। बहुत ही स्ट्रांग वुड होती है। इस वुड को रखा गया है उसके ऊपर, और उसके बाद फिर ऊपर बनाया गया, ज्यादातर स्टोन से बना है ये भी। तो ये ताजमहल में था। बुर्ज खलीफा में आपको मैंने बताया कि नीचे पाइल यूज हुई है, कॉम्पेक्शन पाइल, क्योंकि वो भी एक तरह से वीक सॉइल थी। कॉम्पेक्शन पाइल के ऊपर फिर एक आरसीसी राफ्ट है, आरसीसी में स्टील यूज हुआ है, उसके ऊपर फिर स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है, वो कंक्रीट एंड स्टील का कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज व्हाट वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि हमारा ये फाउंडेशन क्या है। इसमें जो इसकी जो दीवारें हैं या बाउंड्री वॉल है, इसमें भी वही पिंक सैंड स्टोन यूज हुआ है। लॉट ऑफ दी स्टोन हैज बीन यूज्ड। ये स्टोन इज ड्यूरेबल, ब्रिक इज नॉट ड्यूरेबल, क्योंकि स्टोन तो वैसे भी हजारों साल से बन के रखा है, उसको खाली हम ग्राइंडिंग करके, पॉलिश करके या कटिंग करके यूज कर रहे हैं। स्टोन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड दैट इज एग्जिस्टिंग सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो उसकी लाइफ स्ट्रांग है। इसमें फर्क क्या आता है? वेदरिंग। वेदरिंग को मिनिमाइज करने के लिए इसमें कोटिंग कर देते हैं, टाइम टू टाइम इसको क्लीनिंग करते रहते हैं, केमिकल्स लगा देते हैं, तो वेदरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं वो वेदरिंग का भी इफेक्ट बहुत कम है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसमें वेदरिंग का इफेक्ट ज्यादा है। जो ग्रेनाइटिक रॉक है, जो इग्नियस रॉक्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वेदरिंग। तो इसमें जो यूज हुआ है वो मोस्टली रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, और इसकी जो वॉल्स बनाई गई हैं चारों तरफ से, वो ब्लास्ट रेजिस्टेंट है। ब्लास्ट रेजिस्टेंट दीवारें हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेइंफोर्समेंट डालते हैं। एक लेयर, फिर बीच में सैंड भरते हैं, फिर दूसरी लेयर, बहुत ही मोटी दीवारें होती हैं। और सैंड इज ऑलवेज विच कैन एब्जॉर्ब दी शॉक्स। जब भी वाइब्रेशन आता है या जैसे ब्लास्ट होगा, तो एक पार्ट डैमेज होगा बाहर वाला, अंदर वाला पार्ट नहीं डैमेज होगा। सो इसको ब्लास्ट रेजिस्टेंस बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बनाए जाते हैं। मतलब नाउडेज वी हैव लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस विच कैन बी यूज्ड टू मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब बनाना चाहते हैं तो 3000 साल के लिए भी बना सकते हैं, बट उसकी फंक्शनल यूटिलिटी उस समय होगी कि नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। सो द जनरल बिल्डिंग्स आर नॉट डिजाइंड फॉर हाई लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको फंक्शनली आउटडेटेड होना ही है। So there is no logic of investing money in the such buildings, commercial buildings या फिर residential buildings। कोई टेम्पल है या कोई बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग है, उसकी लाइफ ज्यादा बनाते हैं। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ। जितनी आप लाइफ ज्यादा देना चाहते हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। Although Delhi is in zone 4, but the building has been designed as per seismic capacity of 5। आपको शायद आइडिया होगा कि पूरे इंडिया का डिवीजन सीस्मिक जोन्स में किया गया है, एंड वी हैव द 4 जोन्स, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। पहले 5 होती थी, लेकिन 10 साल पहले फिर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मर्ज करके जोन 1 एंड जोन 2 वाज मर्ज्ड। सो वी हैव नाउ जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 5 इज मोस्ट वल्नरेबल या मैक्सिमम अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट, हिमालयन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, देन पार्ट ऑफ द गुजरात, कच्छ रीजन। तो ये जो ज्वाइंट्स वाले हो, जहां पर वो टेक्टोनिक ज्वाइंट्स हैं, दे आर जोन 5। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, जोन 4। फिर उसके नीचे जाएंगे जैसे सेंट्रल इंडिया, एमपी, गुजरात, गुजरात का वो वाला पार्ट, वेस्टर्न वाला पार्ट जाएंगे ना, तो दैट इज जोन 5। अदरवाइज बाकी जोन इधर राजस्थान, ये जोन 3। और कर्नाटका के नीचे तमिलनाडु, जो डेक्कन प्लेटो जिसको कहते हैं, दैट इज इन जोन 2। अंडमान निकोबार इज इन जोन 5, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हिमालयन बेल्ट का जो सरकमफ्रेंस है, दैट इज अगेन जोन 5। सो दिस इज, दिल्ली इज इन जोन 4 विच इज ए वल्नरेबल जोन। तो जोन 4 के लिए अगर आप डिजाइन करते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, सो इट हैज बीन डिजाइन्ड एज पर जोन 5। द क्राइटेरिया इज टेकन एट जोन 5। So walls are made blast resistant, and Central Vista project consists of new parliament building। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की,
आने वाले समय में 888 लोकसभा एमपी होंगे, राइट? अभी कितने हैं? 545, और आने वाले समय में 1272 हो जाएंगे। न्यू पार्लियामेंट हैज ट्रायंगुलर शेप। अब इसमें जो फीचर्स हैं, एक तो यह है कि इट्स इंटीरियर रिफ्लेक्ट्स जो नेशनल बर्ड है उसका कलर स्कीम, पिकॉक, जो नेशनल फ्लावर है उस लोटस के डिजाइन को, और जो नेशनल ट्री है बानियान ट्री, इसको अंदर प्लांट करा गया है। नेशनल एम्बलम क्राउन पे रखा गया है, एज आई टोल्ड, एंड सिंगोल हैज बीन प्लेस्ड ऑन द स्पीकर्स डेस्क, वहां पर है। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक विल बी, द मिनिस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक विल बी रिलोकेटेड, इसको फिर बाद में स्ट्रेंथन करेंगे, एंड देन इट विल बी यूज्ड फॉर द म्यूजियम। ये देखिए लेआउट आप देख रहे हैं, यह है पार्लियामेंट, और ये पूरा सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना है, यहाँ सारे मंत्रालय आएंगे। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट।